गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for accountancy chapter number 4, that is journal. Before coming to the chapter, I'll revise chapter number 2, some rules of accounts, the golden rules of accounts. As you have seen over there are 3 types of accounts: personal accounts, real accounts and nominal accounts. Personal accounts, the rules were debit the receiver, credit the giver. Nominal account, real accounts, the rules were debit what comes in, credit what goes out. And nominal account, the rules were debit the expense and loss, credit the incomes and gains. Based on that only we will be preparing the journal. Okay. Journal, what do you mean by journal? Okay. Meaning of journal, it is a book of recording. Okay. It is the first book, the fundamental book as we can see. Okay. It is the first book of accounting based on the rules of debit and credit. Okay. A recording process. A recording process of accounting transactions. Process of accounting transactions. A recording process of accounting transactions based on rules of debit and credit. A recording process of accounting transactions based on the rules of debit and credit in the first book of accounts. In the first book of accounts is known as journal. Okay, the book in which the transactions are recorded is known as journal book. जिस बुक में ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, that is called as journal book. It is a fundamental, basic and prime books of accounting based on the vouchers on daily basis. Based on the vouchers, we used to write the entries. Okay, in the journal. Based on the vouchers, we used to write the entries in the journal. We have already seen how to record the entries in the journal. Okay. First, we got to give the heading, journal entry in the books of so and so. For the month-wise, we used to record the entries. For the month of supposedly January 2019. Okay, then date, particulars, LF, ledger for you. Then debit rupees and credit rupees. Okay. The transactions now, you are very much able to classify the transactions, which account will be debited and which account will be credited. You already know how to pass the effects. We have already seen that. How to make the entries and how to pass the effect, how to record it. Okay. So now I will
record the entries, okay, without the columns. You got to pass the entries in the column itself. Okay, I'll roughly make the column. You got to prepare the column with scale and pencil. Okay, so the columns as such, date, then it is particulars, then it is LF, that's ledger folio, then debit rupees, and then credit rupees. Okay. Simple entries we have already seen, some of the simple entries. Okay, we have already seen that. Even I have given you the homework for that, for simple entries. Now we will see the combined entries. What do you mean by combined entries? Okay. Supposedly, in the particular day itself, we are doing more than one transaction. Suppose purchase goods of rupees 5,000 in cash. Purchase goods of rupees 5,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Paid salary of rupees 4,000 in cash. Purchase furniture of rupees 3,000 in cash. पहले हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया 5,000 का कैश में, सैलरी पे की 4,000 की कैश में, फर्नीचर परचेस किया 3,000 का कैश में. अब सबकी अगर अलग अलग आप एंट्री पास करें, यू कैन सी पहले की एंट्री आएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. देन मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं. पहले की आप एंट्री पास कर दे, अगर परचेस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000. ऐसे लिखना कंपल्सरी है, पता है कैसे लिखना होता है? एक्सक्यूज मी. परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेस्ड. ओके, उसी सेम डेट पे सपोज हमने किया था सैलरी पे की थी. सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, ओके, 4,000 बीइंग सैलरी पेड इन कैश. उसके बाद सेम डेट पे आपने किया था फर्नीचर परचेस किया था. फर्नीचर कब से? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो तीन एंट्री में अलग अलग भी पास कर सकता हूं या उसकी मैं कंबाइन करता हूं. एज आई कैन सी कैश कैश कैश, सॉरी, सैलरी टू कैश. एज आई कैन सी कैश कैश कैश. ओके, तीनों के क्रेडिट में कैश अवेलेबल. तो मैं इसको कंबाइन कर दूं तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट 5,000, सैलरी अकाउंट डेबिट 4,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू कैश अकाउंट 5, 9, 12,000. Being goods purchase, salary paid and furniture purchased in cash. तो हम इसको बोलते हैं combined entry. This we call it as combined entry. Okay, so you'll be learning about the combined entry. Simple entries we have already seen. Okay, then after this combined entry we will be learning about the trade discounts and cash discount कब देना है और कब नहीं देना है. So slowly, gradually, step by step, we'll be learning. Whatever homeworks I am giving it to you, kindly got to solve it out and send me upon proper time. 5 to 6 is your time for giving calls if you have any doubts, and 6 to 7 you are to compulsorily send me the homeworks according to the roll number groups, whatever is allotted to you. Okay. So based on the accounting rules, golden rules of accounting, you have to think about and you got to pass the entries. Okay, this is the main book of accounts. After this only, the next step will be for ledger. Okay, so individually we are making the books for individual accounts, that is for ledger. Then from the ledger, we used to prepare the trial balance, and then afterwards, as the trial balance got tallied, okay, then we go for annual accounts in the month of March. So, it is the first primary, basic, fundamental books of accountancy
which you have to learn it very properly. ये आएगा तो आपका अकाउंट्स और इजी हो जाएगा. Not only I am talking about 11th standard, I am talking about accountancy. For the entire life of accountancy, you have to compulsorily know to pass the entries. Each and everywhere in accountancy, you must be knowing to pass the respective entries. So better start practicing the sums, solve the sums again and again. Try to understand the transactions which is given. What the transactions need to narrate, क्या बताना चाहता है वो आप समझे और बेस्ड ऑन दैट फिर इसकी एंट्री पास करें. ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो टिल द एंड. थैंक्स अगेन. Illustration number 13. Now we will see the transactions related with GST. GST, as we have already seen the chapter number 3rd. Okay, now coming to chapter number 4th, the transactions are along with GST. Okay, so pass journal entries for following transactions in the books of Sri Ashwin Patel of Ahmedabad for January 2019. CGST, Central Goods and Service Tax 6% and SGST, State Goods and Service Tax 6% are applicable to the business transactions of Sri Ashwin Patel. At the same time, IGST, Integrated Goods and Service Tax 12% is applicable. GST is not included in the following transactions. Pass journal entries by adding applicable GST. Okay, the trader belongs from Ahmedabad. Okay, 2019 Jan 1. Goods of which 10,000 is purchased from Suresh Bhai of Surat, and railway freight rupees 2,000 and labor rupees 500 are paid by check. Okay, so purchase आपने किया है 10,000 का गुड्स, 2,000 का रेलवे फ्राइट पे किया है और 500 का आपने लेबर पे किया है. आर पेड बाय चेक्स. लेट अस सी द ट्रांजेक्शन्स. परचेज किया आपने 10,000 का, रेलवे फ्राइट 2,000, वेजेस 500. कितना आपको करना था? CGST. ओके, कितना करना है आपको? 6%. सो 6% टोटल बिल कितना मिला? 12,500 का बिल बना. उसका 6% 12,500 multiply by 6 divided by 100, that is 750. CGST account debit 750. SGST account debit, परचेज करे तो इनपुट लगता है. SGST account debit 750 to बैंक अकाउंट 14,000. 10,000 का परचेज, रेलवे फ्राइट 2,000, वेजेस 500. बिल कितने का बना? 12,500 का मेरा बिल बना. उसके ऊपर 6% CGST और 6% SGST लगाया. तो चेक से पेमेंट किया मैंने 14,000 का. ओके, नंबर सेकेंड. गुड्स सर्विस 8,000 परचेज फ्रॉम अमूल भाई ऑफ आनंद. आनंद मतलब गुजरात के अंदर. या वन सेकेंड. परचेज अकाउंट डेबिट CGST SGST टू आनंद. लेट्स सी. परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, 8,000 के ऊपर 6% CGST, 6% SGST टू अमूल भाई. टोटल बिल में इसको पे करना पड़ेगा 8,960 रुपीज़. परचेस करते तो इनपुट, सेल करते तो आउटपुट. डेट नंबर 7. गुड्स आर रुपीज़ 15,000 इज परचेज फ्रॉम राजेश भाई ऑफ जयपुर एंड अमाउंट इज पेड बाय चेक. जयपुर मतलब अदर स्टेट आ गया तो IGST लगेगा सीधा 12%. परचेज क्या मैंने? परचेस अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. लेट अस सी. परचेस अकाउंट डेबिट 15,000, IGST 12%, 15,000 का 12% दैट इज 1,800 टू बैंक अकाउंट. चेक से पेमेंट यहाँ पे हो चुका है तो बैंक इज द गिवर टू बैंक अकाउंट. टोटल अमाउंट 16,800. कुछ नया नहीं है, सिर्फ CGST SGST IHGST जो भी है परचेज के टाइम पे डेबिट हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है. डेट नंबर 9. गुड्स आर रुपीज़ 12,000 इज परचेज फ्रॉम मनोज भाई ऑफ मुंबई. वन सेकेंड IGST. परचेज अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू मनोज भाई. परचेज अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू मनोज भाई. आपको ऑलरेडी अब आ चुका है कैसे आपको परसेंटेज निकालना है. 12,000 का 12%. नेक्स्ट डेट नंबर 9. गुड्स सर्विस 12,000 परचेज फ्रॉम मनोज भाई द डिविडेंड. सॉरी. नंबर 10. गुड्स सर्विस 2,000 रिटर्न बाय अमूल भाई ऑफ आनंद. अमूल भाई ने मुझे वापस कर दिया. रिटर्न बाय अमूल भाई. अमूल भाई को मैंने सेल किया होगा. अमूल भाई ने मुझे गुड्स यहाँ पे वापस कर दिए तो अमूल भाई अकाउंट डेबिट. तो मुझे CGST SGST के पैसे मुझे वापस मिलेंगे. अमूल भाई अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 2,000 का गुड्स.
CGST वापस आया 120, 2000 का 6% 120, एंड SGST वापस आया 6%, दैट इज 120। तो टोटल अमूल भाई को वापस डेबिट रिसीवर कितने का हुआ? 2240 का हुआ। डेट नंबर 12, गुड्स रुपीज 3000 रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ मुंबई। मनोज भाई को मैंने वापस किया। ओके, सो वंस अगेन मनोज भाई इज द रिसीवर, मनोज भाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 3000, बिल IGST, उसका IGST था, ठीक है, तो उसको IGST वापस मिलेगा 360। ओके, तो मनोज भाई डेबिट रिसीवर ऑफ 3360। मतलब अगर आप GST भरते हो तो रिटर्न के टाइम को आपको GST आपका वापस मिलेगा, जितने का गुड्स आप वापस करते हो या फिर मैं आपको वापस करता हूँ वो सब। उसके बाद डेट नंबर 15, गुड्स आर रुपीज 15,000 सोल्ड टू केवल भाई ऑफ की सोड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। केवल भाई को मैंने यहाँ पे गुड सेंड किया 15,000 का। ओके, तो केवल भाई और पेमेंट यहाँ पे चेक से मुझे मिल चुका है। सो टू सेल्स अकाउंट 15,000, CGST 6% 900 रुपये अभी आउटपुट हो जाएगा। सेल्स में CGST SGST आउटपुट क्रेडिट में आएगा। ओके, 5% CGST 5% SGST, चेक इसने मिला, टोटल चेक मुझे मिला 16,800 रुपीज़ का। सेल्स क्या मतलब मुझे पैसा मिलेगा इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। डेट नंबर 17, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू विनोद बाय ऑफ वलसाड, रेलवे फ्राइड 1,000 एंड 1,000 फॉर वेजेस इज पेड ऑन हिज बिहाफ। सेल्स किया मैंने यहाँ पे वलसाड वाले को, मतलब ये भी CGST SGST वाला हो गया। ओके, 1,000 रुपये का रेलवे फ्राइड, 1,000 रुपये का वेजेस, दोनों मिला के फिर CGST करना पड़ेगा। ओके, सो पहले टू सेल्स 20,000 का जो मैं रेलवे फेड वगैरह पे किए मैंने, टू कैश 2,000, दोनों को प्लस क्या 22,000 का गुड्स हो गया। उस पर CGST लगा 6% 1320 और SGST लगा 1320। तो टोटल विनोद भाई को अब मुझे पे करना है, विनोद भाई द रिसीवर, विनोद भाई अकाउंट डेबिट 24640। तो आप एंट्री करके फिर आराम से अमाउंट लिखना, पहले आप एंट्रीज पास कर लेना फिर अमाउंट 1 by 1 लिखना, तो दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू पीपल। बस एंट्री कौन सी आएगी ये पता आपको होना चाहिए। गुड्स आर रुपीज 12,000 सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ओके, 12,000 का गुड्स मैंने यहाँ पे बेचा है दिनेश भाई को और चेक से मुझे पेमेंट मिल चुका है। तो दिनेश भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू IGST 20 वाला पेमेंट रिसीव बाय चेक से मिल चुका है, मतलब विनोद भाई का नाम नहीं आएगा। चेक से आ चुका है क्या? या चेक से आ चुका है, तो दिनेश भाई का नाम नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू IGST। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर विद यू पीपल कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करना है। ये IGST था तो लिखा सेल्स में आउटपुट IGST। ओके ना। नंबर 22, डेट 22, गुड्स आर रुपीज 18,000 सोल्ड टू भावेश भाई ऑफ भोपाल। ठीक है, 1 सेकेंड IGST लगेगा। ओके, द भावेश भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू IGST अकाउंट टू आउटपुट IGST। लेट्स सी, भावेश भाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST। 8,000 पे 12% सीधा 2160, भावेश भाई में डेबिट में 20160। डेट 25, गुड्स आर 2500 of original cost written by विनोद भाई ऑफ वलसाड। यह कॉस्ट प्राइस मीन्स एक्सक्लूडिंग GST को माइनस करने के बाद वापस किया मुझे विनोद भाई ने। तो विनोद भाई को मैंने सेल्स किया होगा तो ये मेरे लिए वन टाइप का सेल्स रिटर्न है। ओके, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2500, जितना मैंने उसको CGST SGST मैंने उसके पास पे करवाया था, ठीक है, उतना मुझे वो वापस करेगा। ओके, तो सेल्स के टाइम पर क्रेडिट में था CGST और SGST, रिटर्न के टाइम पर डेबिट पे आ गया। 2500 पे 6% CGST और 6% SGST एंड टू विनोद भाई। डेट 31, गुड्स आर रुपीज 3,000 रिटर्न बाय भावेश भाई ऑफ भोपाल। उसने 3,000 के गुड्स वापस किए, सेल्स किया होते हुए वापस किया है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू भावेश भाई, लेट अस चेक। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट IGST अकाउंट डेबिट टू भावेश भाई। आई होप सो इट इज़ वेरी मच क्लियर विद यू पीपल राइट नाउ कि कैसे मुझे पास करना है GST के ट्रांजेक्शन्स। परचेस करते वक्त ध्यान देना है GST जो भी है वो इनपुट GST आता है, मतलब आप CGST बोलो या SGST बोलो या
IGST बोलो, परचेज करते वक्त वो डेबिट पे आएगा, ठीक है। गुड्स की टोटल प्राइस के ऊपर आएगा, सिर्फ गुड्स की प्राइस नहीं, उसके ऊपर आपने जो भी खर्चा किया होगा वो जो अमाउंट बनता है उसके ऊपर आपको GST लगाना है। तो परचेस के टाइम पे डेबिट पे आएगा, परचेस रिटर्न के टाइम पे जितने का गुड्स वापस किया वो क्रेडिट पे आएगा, CGST, SGST, IGST। सेल्स के टाइम पे क्रेडिट में आएगा, उसमें लगाएंगे आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, ओके। और सेल्स रिटर्न के टाइम पे डेबिट पे आएगा। सिर्फ इतना ही डिफरेंस यहाँ पे है। आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व दिस सम्स। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।